others co-leaders who have joined us. Good evening, Najeet ma'am, and Harpreet ma'am. Good evening. Harpreet ma'am, you are driving, so please you can stop your car. I'll be sharing the recording at the end of this session. So we'll be uploading that, and that will be made available, so you can watch that later on. Right, sir. Yeah, I just will the rejoin in 5 minutes. yeah, perfectly all right. Yeah, just the point is, if you are in an online mode, and so that's the reason we are not using the StreamYard. We are using the OBS. Google Meet, so that if you have any OBS. question and hands-on is required, so you can ask your doubt directly to KK Singh sir. So now I Sure, sir. hand over to KK Singh sir. Sir, please. So Good can I ask? good evening mentors. हाँ मैम बताएं what do you want to Can say? I ask my co-leader also to join? Sure Yeah, sure. yeah, please, Thank you. please. Who is your co-leader, ma'am? Sunipa ma'am. Sunipa Sanyal. Is she in the GEG mentors group also? No ma'am. Actually, her. she is not. She has not qualified the that, but she is helping me in that. So she cannot join. That is why I have not invited her. I will. Excuse me. I'll ask one-to-one about that, sir. Let's get started. Yeah. Ma'am, co-leader and leader both can join. There is no harm. No, she's saying something else. Maybe she says that her approval has not come or something like that. Yeah, Okay. unless it is being approved, no, right? So Yeah. let's wait. Yeah. Yeah, Later let's on, get- the recording can be shared with her once the approval is there. Definitely no problem. Okay. Yeah, Okay, ma'am. thank you. So stage is all yours, sir. Sir, thank you so much. मैम ये जो सेशन है it could be in English and Hindi as well. Hope no mind, don't mind, please. So Yeah, perfectly. okay. So basically, OBS is open source software, which means we can download this software freely, and we can distribute this software to anyone or can give to anyone, and they can make the research on OBS, and they can submit that research to open source community. एंड अगर वो ओपन सोर्स कम्युनिटी को जो फीचर्स वो ऐड ऑन करते हैं, अगर वो प्रोवाइड करते हैं, तो वो दे विल बिकम द मेंबर ऑफ दैट कम्युनिटी एज वेल. एंड ओबीएस का जो फंक्शन है यहाँ पर बेसिकली आई हैव बीन यूजिंग फॉर लाइव स्ट्रीमिंग इनिशियली, and later when I started recording the videos, then also I realized that this is the best platform for me. So what is OBS and how to install it? So please go to obsproject.com. From there you will have to download Windows version OBS Studio for Windows, and very simple method of downloading OBS. There is no complications. You can easily download it. And here on this screen, many features are available on this screen in the forum tab. forum टैब पर आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलेंगे जो कि हमें प्रैक्टिस करते करते ये पता चलेगा कि क्या क्या फीचर्स हमें चाहिए होंगे. मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन से फीचर्स मैंने केवल और केवल फॉरम देख करके लिए हैं. दैट यू कैन ऑल्सो डू. So this is the obvious screen, and it has the panel. There are two panels we see. One is the main screen. It is captured by your virtual camera, OBS virtual camera. And apart from this, there are some panels which we have to taken care of. Like panel consists of main three. आगे दो और भी हैं that I'll discuss. One is scenes, number two sources, and number three audio mixer. So scenes means the transition. जैसे कि हम अपने PowerPoint प्रेजेंटेशन में या स्लाइड प्रेजेंटेशन में करते हैं कि जो स्लाइड्स हैं उसका ट्रांजिशन कैसे होता है, तो वो एक्चुअली यहाँ पर OBS में सीन्स की तरीके से वर्क करता है. लेकिन ऐसा नहीं है
कि हम अगर प्रेजेंटेशन गूगल स्लाइड में बनाते हैं और वो प्रेजेंटेशन हम यहाँ नहीं बना सकते, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल इन OBS. The same kind of presentation we can create in OBS also. So this part, this window is scenes window. By default, one scene is there by default. But if you want to add scenes, then you will have to click the plus button. And जैसे ही आप plus button click करते हैं, next scene will be or other scene will be created, and you can give the name or rename the scene to scene 3, scene 4 and so on. जितने भी scenes आप manage करना चाहते हैं, you can manage all the scenes, and with the help of transitions and the hotkeys you can change the scenes also. In source window, this is source window. In source window we have if you want to add image, if you want to add the presentation, if you want to add the video, if you want to add video camera, you can do all this in this window. And from this panel, audio mixer, if you want to attach your auxiliary mic, then it will help from this panel or from this window. So we have these options in source: audio input capture, audio output capture, browser, color source. तो इसको मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ और आप उसको हैंड्स ऑन भी कर सकते हैं। साथ साथ मुझे बताते जाइएगा हम कर रहे हैं, तो मैं उसी टाइम पर रुक जाऊंगा, फिर आगे चलूंगा। So browser. So when you select browser in source window, then you will have to apply an URL. So this window will appear on your screen. So whichever browser, website you want to present through browser, you can give the URL of that browser here. Like I have taken social.com, so it is social.com which is be presented on your स्क्रीन, जो कि आपके सामने जो वर्चुअल कैमरा जिसको कैप्चर कर रहा है वहाँ पर ये स्क्रीन आपको दिखाई देगी। और उसके साथ साथ आप जो है इसके कॉन्फ़िगरेशन भी चेक कर सकते हैं कि लाइक यहाँ पर 1920 बेस्ट कॉम्बिनेशन है ये 1920 एंड 1080। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, वैसे तो मैं हार्डली यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप किसी भी वेबसाइट को भी यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं इन ब्राउज़र विंडो। नेक्स्ट, डिस्प्ले कैप्चर। दिस इज लाइक योर StreamYard में जो प्रेजेंटेशन होता है एंटायर विंडो, जैसे हमारे गूगल मीट में होता है एंटायर विंडो एंड टैब्स, जो हमारे गूगल मीट में होता है वो चीज़ यहाँ पर भी है। यानी डिस्प्ले कैप्चर में आप डेस्कटॉप का प्लस ब्राउज़र का कोई भी विंडो आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो इवन अगर आप चाहें तो जो आपकी PDF फाइल है वो PDF फाइल भी हम यहाँ से ले सकते हैं डिस्प्ले कैप्चर के थ्रू। एंड PDF फाइल को हमें अगर PDF फाइल पे स्क्रिबल वगैरह करना है तो उसमें मैं आपको केवल एक टिप दूंगा कि उसको अगर आप वन नोट में ओपन करें तो देयर आर सम टूल्स विच कैन हेल्प यू स्क्रिबलिंग द डॉक्यूमेंट योर PDF। उसके अलावा कोई भी विंडो डेस्कटॉप की वो आप यहाँ से ले सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ब्राउज़र सेट कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी डिस्प्ले ऑप्शन में आएगी। तो कैसे करना है मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता हूँ। Is this screen visible? Yes, sir. Okay. So here this is, यहाँ पर ये सीन 1। तो सीन 1 में क्या है ये देखिए, इसके कंटेंट कुछ ऐसे होंगे और सीन 2 के जो कंटेंट हैं वो कुछ ऐसे होंगे। ये हमारा जो प्रेजेंटेशन चल रहा है वो सीन 2 पर चल रहा है और सीन 1 में हमारा बेसिक चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पर
जैसे ही आप प्लस करते हैं, तो अगर मैं सपोज करो यहाँ से इसको हटाता हूँ, डिस्प्ले को हटाता हूँ, तो डिस्प्ले को हटाते ही जो हम डिस्प्ले करेंगे वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। और वैसे क्या होता है कि अगर मैं कोशिश करता हूँ इसको हटाने की, इन केस ये हटा दिया एंड देन कुछ और हट गया, इसको हटाने के लिए डिस्प्ले कैप्चर जो ऑप्शन है इसको क्लिक करें एंड यहाँ पर माइनस क्लिक कर दें, and this way display capture goes off. So now screen is clear. Now again I want to add this display capture, so go to plus and display capture, give the name, any appropriate name which you want, and here there are three options. So prefer automatic better, या आप विंडोज 10 वगैरह भी यूज कर सकते हैं, दिस इज अप टू यू। एंड अगर मैं इसको ओके करता हूं, इसका मतलब ये है कि जो भी विंडो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा वो विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि मेरा जो वीडियो था वो कैप्चर चला गया, केवल विंडो यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उसके लिए क्या करना है, मैं इसको भी हटा देता हूँ एक बार और दोबारा से करता हूँ, like this, and again click on plus and video capture, give appropriate name, and from here you will have to select the camera. So here I am selecting integrated camera, which is my laptop's camera, and in addition I can use Droid Cam also. Droid Cam के लिए क्या है, आप अपना जो मोबाइल कैमरा है उसको भी या मोबाइल को भी आप यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम यूजिंग two cameras. One is Logitech and other is my integrated camera. And then say okay. Now if you see, this is the video. मैंने इसको राइट साइड कॉर्नर में प्लेस कर लिया। अगर इसका बैकग्राउंड आप देखते हैं तो यहाँ पर आप ये देखेंगे कि ये स्क्रीन ग्रीन है, बैकग्राउंड मेरा ग्रीन है। अब अगर बैकग्राउंड मेरा ग्रीन रहेगा तो जो स्क्रीन मेरे पीछे आनी है वो उसके सामने ये ग्रीन बैकग्राउंड एंड मैं दिखाई दूंगा। तो सबसे पहली चीज़ है कि मुझे बैकग्राउंड हटाना है। तो हाउ टू रिमूव द बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो कैप्चर में फिल्टर्स में जाकर के हियर इन दिस फिल्टर you will have to add one filter, that is the chroma key. And here you see the effect of chroma key. Automatically इसमें changes आ गए। इसको बस थोड़ा सा सिमिलरिटी से इसको इंक्रीज या डिक्रीज करके इसका बैकग्राउंड क्लियर करने की कोशिश करें। और जब आप ये देखें कि ये अप्रोप्रिएट हो रहा है तो उसको वहाँ पर छोड़ दें। और उसके साथ साथ जो दूसरी स्मूथनेस है उससे भी आप इसको थोड़ा चेंज ला सकते हैं अपने हिसाब से। इसको जैसा भी आपका बैकग्राउंड है उसके हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। कभी कभी जो फेस के जो पिगमेंट्स हैं, बॉडी पिगमेंट्स हैं, वो थोड़ा से डल हो जाते हैं, डार्क हो जाते हैं, तो ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए फिर आप इसमें ये कलर स्पिल रिडक्शन भी यूज कर सकते हैं, लाइक दिस।
एंड देन क्लोज। अब इस टाइम पर डिस्प्ले में जो कुछ भी आएगा वो मेरे पीछे आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इफ आई टेक दिस, तो जो मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है उस रिकॉर्डिंग में हम ये देख पाएंगे कि ये जो स्क्रीन है डिस्प्ले कैप्चर, इसके आगे मैं होऊंगा और ये स्क्रीन मेरे पीछे होगी। तो इस तरीके से हम क्रोमा की का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज इमेज। इमेज के लिए हमें क्या करना है, मैं सीन 1 में जाके देखता हूँ कि इमेज मैं यहाँ ऐड कर सकता हूँ या मैं कोई और इमेज ऐड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल प्लस an image, any image. So browse your system and take any image. Like this and say OK. Now you can set this image anywhere. Right click on the image and go to transform, and here if you say fit to screen तो ये पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। और अगर आप किसी कॉर्नर में या कहीं और रखना चाहते हैं तो आप उसको वैसे ही सेट भी कर सकते हैं। लाइक दिस। लेकिन फिलहाल मुझे ये नहीं चाहिए तो मैं इसको यहां से हटा देता हूं एंड माइनस। So this way we can add the image to your presentation or OBS. So this image is actually acting as a background for me. हाँ, Is that the आप कर purpose? सकते हैं, ये बैकग्राउंड की तरह से आएगा क्योंकि आप Okay. तो आगे आ गए हैं ना। हाँ, आपने नहीं, अपनी अब अपना अगर बैकग्राउंड image, आपने अपना बैकग्राउंड तो क्लियर कर लिया है, राइट? right. तो जो इमेज आप लेंगे वो आपके पीछे ही आएगी, वो पीछे के लिए ही होगी क्योंकि आप आगे हैं। बट आपने जैसे अभी इमेज को मान लीजिए फिट टू स्क्रीन किया था तो आप फिर दिखाई नहीं दे रहे। हाँ, क्योंकि वो दिखाई मैं दे जाऊंगा अगर ये जो आप देख रहे हैं ना पैनल, ओके, जो सोर्स पैनल, इसमें अगर मैं वीडियो कैप्चर को अप एंड डाउन करूंगा तो मैं आगे आ जाऊंगा और जो इमेज है वो पीछे चली जाएगी। या इस टाइम मैं अगर नहीं दिखाई दे रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि इमेज मेरे आगे है। तो इनको सफल करके आप सीन्स तैयार कर सकते हैं, सोर्स तैयार कर सकते हैं। ओके, राइट सर। सो नेक्स्ट इज इमेज, एंड इमेज के बाद हमारे पास आता है इमेज स्लाइड शो। इमेज स्लाइड शो में आपको क्या करना है कि जितनी भी स्लाइड्स आपने बनाई हुई हैं और जो आपके सिस्टम में स्टोर्ड हैं, या तो स्लाइड्स मान लीजिए या फिर कुछ स्नैप्स मान लीजिए, पिक्चर्स मान लीजिए, उन सारी पिक्चर्स को कलेक्ट करके आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। प्लस करके ये पिक्चर अपलोड करते जाइए। जैसे ये मैंने अपलोड किए APS 29 आर्मी डे दिस एंड क्लास JPG क्लासरूम। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो ये जो है एक प्रेजेंटेशन जो आपका जैसे स्लाइड प्रेजेंटेशन है बिल्कुल उसी तरीके से वर्क करेगा। Hope this is clear. So can we add multiple images in one go or maybe a folder also? Sir, folder I can't say, but images as many as you can Okay, add. fine. Right sir. Okay. And also, I mean, जो भी हमारे GG leaders और सभी present हैं mentors, if you have any question, please feel free. हाँ, ये आप अपना प्लीज पूछ informal रहे session है, बिकॉज you ओपन can ask. सेशन
और उसके Yeah. बाद ये भी मान लीजिए कि मैं इस चीज़ का मास्टर नहीं हूँ, पर जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है वो आई एम शेयरिंग विद यू. Yes, sir. Yeah. Thank you. Media source means if you want to add a video, then you can add the video as well. So when you click, मैं करके दिखाता हूँ इसको. Plus your source, browse, any video I can share, like यही शेयर करने की कोशिश करता हूँ. Hello friends, hello educators. And इसको अगर आप today I am here transform करके इसको fit to screen करेंगे, तो ये वीडियो जो है आपकी पूरी स्क्रीन पर आ जाएगा. The function of Google Sheets, that is to give the aesthetic look to your Google Sheet. So this way you can add. If you see the Google Sheet अगेन सर primarily इसमें लॉजिक वही the चलेगा colors of कि the Google आपको Sheet शफल करना है थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो आप are खुद like आगे आ this. जाएंगे, वीडियो पीछे चला जाएगा. So the मैं entire करके interface दिखाता हूँ. looks dull. जी. And why can't we give the aesthetic color to our cells or the Google Sheet? क्या बात है, वेरी So नाइस. having the same intention, तो इससे ये शफलिंग से हम काफी अच्छा इम्पैक्ट दे सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन को. Sir, can you please repeat this? ये कैसे किया? I missed that. सर ये पहले हमने यहाँ पर अपना मीडिया लगाया हुआ था. Mm-hmm. Okay, shuffling of these. Okay, हाँ. that's I got it और now. उसके बाद जो है मैंने वीडियो अपना आगे किया, तो उसको नीचे लेके आया और लाइक इसको मैं फिर नीचे लेके जाता हूँ यहाँ पर. ठीक. Right. ओके सर. ये किस ऑर्डर में चलता है सर? ये किस ऑर्डर में? सबसे जैसे आगे क्या चाहिए, उसके पीछे क्या चाहिए, उसके बॉटम, पीछे क्या चाहिए? मैम टॉप टू बॉटम चलता है. जो भी आपके यहाँ मतलब सबसे पहली लेयर में क्या चाहिए, फिर सेकंड पहली लेयर लेयर में क्या में चाहिए? क्या चाहिए वाली बात नहीं है मैम. उसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए कि आपको पहले क्या चाहिए. जैसे मुझे अपना वीडियो चाहिए था, तो मैंने इसको ले लिया. तो देखिए आप, सबसे पहला मेरे वीडियो आ रहा है. ओके, देन मैंने स्क्रॉल टेक्स्ट के लिए किया, तो ये उसके नीचे स्क्रॉल टेक्स्ट आ रहा है. देन विंडो कैप्चर, यानी जो मेरा ब्राउज़र स्क्रीन होगा वो आ जाएगा. देन उसके बाद मैंने मीडिया लिया हुआ है. तो ये ऑर्डर मैंने रखा हुआ है. अब इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो उसी हिसाब से मेरी पिक्चर पीछे चली जाएगी या दूसरी पिक्चर सामने आ जाएगी. ये डिपेंड करता है आपके ऊपर. इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको जो है इस ऑर्डर में ही करना है. जो ऑर्डर आपको ये लगता है कि अप्रोप्रिएट है आपके प्रेजेंटेशन के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए, उसी ऑर्डर में आप इसको रख सकते हैं. विंडो कैप्चर कैसे हुआ सर? जैसे मीडिया तो मुझे समझ आ गया, आपने वीडियो पीछे प्ले कर रहे हैं, ठीक है. विंडो कैप्चर क्या हुआ इसमें? विंडो, ये जो पीछे है ना, ये विंडो कैप्चर ही चल रहा है. तो फिर वीडियो कहाँ गया? ये विंडो कैप्चर मैं यहाँ से फिलहाल हटा देता हूँ. हेलो फ्रेंड्स, ये आपका वीडियो. हेलो एजुकेटर्स. राइट. टुडे आई एम Window- इसमें कुछ भी नहीं करना होता है. बस थोड़ा सा अगर जैसे कुछ नहीं दिखाई देता है तो शफल करके और प्रॉपर्टीज देख करके function आप of उसको कर Google सकते हैं. Sheets, कोई इसमें that hard and is fast to ऐसी give टेक्निक the नहीं है. aesthetic बहुत look ही सिंपल है. to your Google Sheet. If you And see यहाँ पर the मैं Google Sheet, विंडो कैप्चर दोबारा से लगाता हूँ. primarily ये हटा देता हूँ. the colors of the Google Sheet, विंडो कैप्चर लाइक जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं साथ जी, साथ, जो मैं right? ये जो मेरा क्रोम प्रेजेंटेशन चल रहा है वो इसी पे चल रहा है. तो इसको मुझे ऐड करना पड़ेगा. तो विंडो कैप्चर में मैं इसको ऐड कर सकता हूँ. विंडो कैप्चर एंड सी हियर. Sir, I am capturing parallelly. मेरे में भी रिकॉर्ड हो रही है. ओके, गुड. तो ये मेरा OBS प्रेजेंटेशन, गूगल स्लाइड्स, ये मेरा ब्राउज़र
का विंडो आ रहा है और इसको मैं जैसे ओके करता हूँ तो ये इट विल वर्क लाइक दिस। अगेन आई एम ऑन माई प्रेजेंटेशन। तो इस तरह से मैंने वीडियो अपना ऐड कर लिया। देन वी कम टू स्क्रोलिंग टेक्स्ट। स्क्रोलिंग टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना है, चलते हैं इसको भी करते हैं। इसको मैं हटा रहा हूं। एंड देन प्लस टेक्स्ट GTI। अब यहाँ पर आप कुछ भी टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। अगर किसी मतलब यूनिकोड में अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ से उसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट करा दीजिए तो वो आ जाएगा। अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो यहाँ से कोई भी फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और वही चीज़ आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं। साइज चेक कर लीजिए एंड लिखना शुरू कर दीजिए। दिस इज OBS presentation for the mentors। एंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आइए और उसके बाद आप जाइए बस और रह गया here। एक तो आपको इसका कलर डिसाइड करना है और दूसरा इसका बैकग्राउंड डिसाइड करना है कि जो स्ट्रिप है वो कहाँ चलेगी। कलर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट करता हूँ सपोज येलो एंड ये मेरे कलर हो गया टेक्स्ट का। एंड उसके साथ साथ आपको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर भी देखना पड़ेगा। तो बैकग्राउंड कलर आप क्या ले रहे हैं वो आप सिलेक्ट करिए। तो सपोज मैं यहाँ पर उठा लेता हूँ ब्लू। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके लिए क्या करना होगा कि बैकग्राउंड ओपेसिटी को इंक्रीज करना होगा। इस तरीके से एंड देन ओके। This will be और जैसे कि ये टेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है तो इसको आप ड्रैग करके फिट कर सकते हैं अपनी स्क्रीन के हिसाब से। इसका फॉन्ट साइज वगैरह नहीं सेट कर सकते सर? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन होता है वहीं क्या है कि जितने वर्ड्स जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं फॉन्ट अपने आप स्मॉल होता चला जाता है, छोटा होता है, इतना टाइनी होता चला जाएगा। इसलिए बेटर है कि इसको आप कस्टमाइज करिए इस स्क्रीन से। इसके जो कॉर्नर्स हैं उससे आप इसको सेट करिए तो ज़्यादा सही रहेगा। सिंगल लाइन में ही आएगा? हाँ बिल्कुल सिंगल लाइन में आएगा।
ऊपर नीचे लाइक पेज की तरह नहीं चलेगा? फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऐसे कुछ नहीं, बस नहीं वर्टिकल एक चल ही सिंगल सकता है, वर्टिकल रहेगा। वर्टिकल चल हम्म। सकता है एंड हॉरिजॉन्टल चल सकता है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसको मैं सेट कर देता हूँ यहाँ। इस टाइम पर ये जो है बिल्कुल स्टैटिक है, स्टेबल है और इसमें कोई मोशन नहीं है। तो मोशन में लाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसकी फिल्टर पर जाइए। फिल्टर एंड हियर आपको एक फिल्टर चूज करना पड़ेगा, स्क्रॉल, ये फिल्टर। और उसके बाद आपको जो हॉरिजॉन्टल स्पीड है, बिकॉज हमारा ये हॉरिजॉन्टली ही चलेगा तो इसलिए हमें हॉरिजॉन्टल स्पीड देनी पड़ेगी। अगर हम आपका वर्टिकल होता तो आप वर्टिकल कराते, वर्टिकल स्पीड चेक करते या सेट करते। तो यहाँ पर स्लोली आप इसको बढ़ाइए। एंड यहाँ से वेरी क्लोज, लाइक दिस। ये आपका मोशन हो गया टेक्स्ट का। सर इसमें क्वेश्चन है, क्या हम अपने जैसे मान लीजिए 5-6 डिफरेंट टेम्पलेट्स हैं, टेक्स्ट है मेरा, जी चैनल का है, यूट्यूब लिंक है या और अलग, तो मैं उसको ऑटो सेव करके रख सकता हूँ यहाँ, या हर बार मतलब कॉपी पेस्ट करके हर बार ऐसे क्रिएट करना पड़ता है? जैसे अगर आप वैसे तो ये स्टोर रहता है नॉर्मली, मैं तो नहीं करता ये, ऑलरेडी जो हमने बना दिया वो, क्योंकि एक ही तरीके के मेरे अगर वीडियोस हैं तो मुझे ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे आज मैंने कोई वीडियो बनाया है, उसके लिए जो टेक्स्ट मैंने यहाँ पर स्क्रिप्ट जो लिखी है, हम्म। और नेक्स्ट डे मुझे वही स्क्रिप्ट मिलेगी। हाँ नेक्स्ट डे मिलेगी, बट मैं आज वाले सेशन में इफ से आई वांट 2 डिफरेंट टेक्स्ट के, इस समय वो ये आपको चले एंड मैनुअली करना वापस पड़ेगा सर, मैनुअल। मैनुअली करना ओके, पड़ेगा। आई विल एक्सप्लोर, राइट सर। ओके, सो दिस इज टेक्स्ट। ऊपर नीचे मेरे को 2 स्ट्रिप रख सकते हैं। हाँ कर सकते एम आई हैं। राइट कि सर? यस यस मैम, यस मैम। एंड देन इसके अंदर जो नेक्स्ट आने वाला है वो है आपका वीडियो कैप्चर। जो वीडियो कैप्चर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हियर दिस इज द स्क्रीन, क्योंकि मैंने ग्रीन स्क्रीन लगाई हुई है, बिकॉज ग्रीन स्क्रीन पे बड़ा आसान हो जाता है बैकग्राउंड को हटाना। बाकी तो वैसे और भी ऑप्शंस उसमें हैं, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन मुझे काफ़ी इजी लगा तो मैंने ग्रीन स्क्रीन में लगा लिया, और मुझे इसमें फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा ये हुआ कि बड़ी आसानी से ये मेरी बैकग्राउंड क्लियर हो गया। सर ग्रीन स्क्रीन का मतलब यही है ना कि जैसे क्लॉथ पीस है, जैसे हाँ मैंने भी हाँ एक हाँ परचेज करा था ऑनलाइन, वो एक ग्रीन पीछे लगा दिया, हाँ हाँ आफ्टर दैट क्रोमा की से ये बिल्कुल रिमूव हो जाएगा हाँ बिल्कुल, बैकग्राउंड। जैसा कि मैंने आपको करके दिखाया भी है। राइट राइट, गॉट बिल्कुल इट, वही। बिकॉज आई परचेज दैट ग्रीन स्क्रीन बट उसको यूज करना नहीं आया था, हम्म। तो दैट्स, थैंक यू फॉर द टिप। मैंने वैसे ही एक क्लॉथ लिया, मार्केट से गया, लेकर के आया, उसको हम्म, लगाया एंड देन ट्राई राइट, किया तो वो हो गया। ग्रेट, सर थैंक यू। एंड कैमरा के लिए मैंने आपको बताया है कि हमारे जितने कैमरा चाहें आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके रिसोर्सेज डिफरेंट होने चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर लैपटॉप कैमरा यूज़ किया हुआ है, यहाँ पर मैंने एक ऑक्सिलरी कैमरा यूज़ किया हुआ है, एंड ड्रॉइड कैमरा मैं यूज़ कर चुका हूँ। सो देयर वर 3 कैमराज एट ए टाइम। अगर आप 3-4 कैमरा जितने आप चाहते हैं वो कैमरे आप अपने आसपास लगा सकते हैं और इसमें अरेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। पर उस सर मीन्स प्लीज जैसे मोबाइल सर कैमरा काम कैसे? प्लीज हाँ जी मीना मैम। पता है मैम।
सर मोबाइल कैमरा कैसे यूज करेंगे इसमें? मोबाइल कैमरा के लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है ड्रॉइड ड्रॉइड कैम सोर्स, राइट मैम? सर मेरे इसमें ओबीएस में सिर्फ 2 फीचर्स दिखाता है, वर्चुअल कैमरा और एचडी, जो मेरे आई नो लैपटॉप आई का नो है। आई नो आई नो, मैं बताता हूँ कैसे आएगा। इसको आपने अपने लैपटॉप पे डाउनलोड करना पड़ेगा, ड्रॉइड कैमरा। ओके ड्रॉइड कैम आपको डाउनलोड करना ओके पड़ेगा। उसके साथ ही साथ साइमल्टेनियसली आपको ड्रॉइड कैम अपने मोबाइल में भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। प्ले स्टोर से जाकर के उसको इंस्टॉल कर लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए। और जैसे ही आप उसको चलाएंगे आपको एक आईपी एड्रेस दिखाई देगा वहाँ पर। उस आईपी एड्रेस को आप डाल दीजिए, जो मोबाइल पे जो आपको दिखाई देगा सिस्टम का, जो कंप्यूटर का ड्रॉइड कैमरा, जब आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वहाँ पर एक आप आईपी एड्रेस आपके सामने आएगा। उस आईपी एड्रेस को आप अपने मोबाइल में डाल दीजिए। तो ये दोनों सर, ही, ये लैपटॉप में क्रोम एक्सटेंशन है या ऐप है? ये मैम ऐप है, ओके, ये ऐप है। ठीक है, आई विल तो ट्राई, थैंक दोनों यू। दोनों कैमरा में, यानी मोबाइल कैमरा में एंड आपके सिस्टम कैमरा में, यानी लैपटॉप कैमरा में, ड्रॉइड कैमरा में एक ही आईपी एड्रेस होगा। तो आपका जो कैमरा है, वो जो मोबाइल पे आपकी जो पिक्चर आएगी, वही चीज़ आप यहाँ पर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ ओके, से चूज़ कर सकते हैं। तो वो कैमरा आपकी स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगा। पर सर ये आपके ओबीएस कैमरा 3-4 कैसे दिख रहे हैं? नहीं, एक वो वहाँ पर ओबीएस कैमरा जो है, यहाँ मैंने कई बार इसको जो वर्चुअल कैमरा है ओके, नेम है, कई बार नेम ऑन है। किए हैं, वही नेम ओके दे ओके दिए हैं, और कोई इशू नहीं है। ओके ओके ओके, थैंक यू सर, राइट थैंक मैम? यू। सर 3-4 कैमरों का काम क्या होता है, करते क्या है 3-4 कैमरों से? 3-4 कैमरों का काम ये करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको ओबीएस में लेके चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर एक सीन 1 है, हम्म। ठीक है मैम, और एक सीन 2 है। सीन 2 पे मेरा ये कैमरा चल रहा है। दोबारा सेट करना होगा, एनीवे चल रहा है। एंड सीन 1 पे जो कैमरा चल रहा है ना मैम, हम्म। ये मेरा लैपटॉप का कैमरा है। तो यानी हर एक सीन पर मेरा वीडियो कैमरा होगा। जितने सीन्स आप बनाएंगे, एक कैमरा सारे सीन्स में नहीं चल सकता। कि जैसे अभी जो गूगल मीट चल रहा है, उस गूगल मीट में मेरा कैमरा नहीं चल रहा है, क्योंकि मेरे दोनों कैमरा यहाँ पर एंगेज्ड हैं। इसलिए गूगल मीट में मेरा केवल स्टिल फोटोग्राफ आ रहा है। तो मीन्स अगर साइमल्टेन ओके, हाँ, यस सर। यस मैम, नहीं नहीं वही मैं समझ गया। अब ये पॉइंट कि अगर आपका गूगल मीट का कैमरा ऑन करना है, देन सीन 3 is to be created यस, and you need another third camera for the अब same. सीन क्रिएट नहीं करना है उसमें, एक्चुअली वो सीन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है, गूगल मीट इसका पार्ट नहीं है। Okay. तो उसमें मुझे ड्रॉइड कैमरा यूज़ करना चाहिए, सो दैट मेरी वहाँ पर इमेज आ जाएगी। तो एक कैमरा मेरा चलेगा आपकी गूगल मीट में, दूसरा कैमरा चलेगा आपकी सीन 1 में, और तीसरा कैमरा चलेगा सीन 2 में। इस Right. तरीके से जितने चाहें उतने कैमरे आप यूज़ कर सकते हैं। सर आई थिंक सीन्स में तो आप सेम कैमरा यूज कर सकते हैं। मैं मैंने यूट्यूब में किया था, तब ओके सेम कैमरा यूज किया था। ओके, अलग अलग होना चाहिए बिल्कुल। पर उसमें अगर होता है तो अच्छी बात है। मैंने हाँ, कहा मैंने कि मैंने ट्राई मास्टरी, किया हुआ है मैंने सर, कहा मेरी मास्टरी सीन्स नहीं में है। सेम कर सकते हैं। हाँ, तो मैंने वो इसलिए एक कैमरा, ऑप्शन देता है, यू वांट एग्जिस्टिंग कैमरा और न्यू कैमरा। ओके वो अप्लाई कर सकते हैं हम, एग्जिस्टिंग कैमरा। ठीक है। उसके साथ साथ मुझे तो इसलिए और फ़ायदा हुआ है कि 2 कैमरा तो मेरे फ्रंट में हैं। अगर मैं तीसरा कैमरा अपने साइड में लगाना चाहता हूँ तो वो भी ले सकता हूँ, और दूसरी साइड में लगाना चाहता हूँ वो भी ले सकता हूँ। कई सारे कैमरे, मतलब कहने का मतलब है इनकॉर्पोरेट कर सकता हूँ इस ओबीएस के अंदर, अगर मेरे राइट। पास मल्टीपल सीन्स हैं तो। नजीद मैम आप कुछ पूछ रहे थे शायद। वो मैम कैमरे के बारे में पूछ रहे थे मैम। अच्छा, हाँ। नहीं, मैंने एक वर्कआउट कर लिया जो मैं पूछ रही थी ना, वो देखते देखते ही वर्कआउट कर लिया कहीं से मैंने। oh, ग्रेट that's ग्रेट। great. था सर। So back to presentation. Video capture device and
क्रोमा की मैं आपको बता चुका हूँ कैसे क्रोमा की यूज़ करना है। उसके अंदर स्मूथनेस, सिमिलैरिटी एंड स्पिल रिडक्शन ये आप यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपका बैकग्राउंड क्लियर हो जाए एंड स्पिक एंड स्पैन रहे, टू द पॉइंट हो। तो इस तरीके से हम क्रोमा की यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जो टीचर्स पूछ रहे थे कि आपने बैकग्राउंड कैसे क्लियर किया, तो बैकग्राउंड क्लियर करने का मेरे पास यही एक रीज़न था कि मैंने क्रोमा की यूज़ की। तो मेरा और सबसे बड़ी बात ये है कि आप अगर चाहें तो कई जगह पर ये ग्रीन स्क्रीन यूज़ होती है और ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट हटाने के लिए हम क्रोमा की यूज़ करते हैं। सो उसका जो मेन टेक्स्ट है या मेन पिक्चर है वो आपके सामने आएगी, लेकिन उसका बैकग्राउंड ग्रीन नहीं रहेगा अगर आप क्रोमा की यूज़ करते हैं। तो कई पिक्चर्स ऐसी होंगी जिसमें आपको ग्रीन बैकग्राउंड मिलेगा और उसके ऊपर टेक्स्ट लिखा होगा या पिक्चर होगी, तो उस ग्रीन कलर को हटाने के लिए हम क्रोमा की यूज़ करते हैं। और सर ग्रीन स्क्रीन ना हो तो तो बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन ना हो तो ग्रीन आता रहेगा। ना, वैसे और भी हैं, मजेंटा कलर भी है, उसको भी हम कर सकते हैं। और नहीं जैसे ग्रीन स्क्रीन है नहीं, मुझे बैकग्राउंड क्लियर ही चाहिए, उससे उसका क्या? उसमें ये होता है मैम कि हम जो कलर पैलेट है वहाँ से जा कर के कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिस कलर में भी चाहें, जिस कलर जब वाइट में चाहते हैं तो वाइट, अगर ग्रीन में चाहते हो तो ग्रीन, ब्लू में चाहते हो तो ब्लू, वहाँ से सेट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ग्रीन स्क्रीन ही होनी चाहिए पीछे, वैसे भी हो सकता है, अच्छा मतलब किया जा वो सकता है, ऑप्शन। बट मैंने ट्राई So नहीं किया है। any solid color, right? चीज मैम, कोई सा भी सॉलिड सिंगल कलर हाँ या मैम, प्लेन होना चाहिए। जी 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 कर सकते हैं हम वहाँ पर। ओके, वीडियो कैप्चर हमारा मैम हो गया है, जिसमें हमने क्रोमा की ऐड की हुई है, ये देखिए। और यहाँ पर ग्रीन है, इसके अलावा कस्टम कलर्स भी हैं इसकी की कलर टाइप में। कस्टम कलर पर जाएंगे तो वहाँ पर एक कलर पैलेट आ जाएगी, वहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो आप इम्पैक्ट देख रहे हैं, जो ये फोटो का जो बॉर्डर है, इसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि इतना ज़्यादा ना कर दिया जाए कि वो जो जिससे मेरे हेयर हैं वो मैंने पता किया कि इसको सिमिलैरिटी को ऐसा इंक्रीज़ किया मैंने कि नेक्स्ट टाइम पे मुझे जब पिक्चर दिखाई दिया तो मेरा वीडियो में बाल दिखाई देने लगा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, यानी जो कलर कॉम्प्लेक्शन है, कलर जो इसका हेयर कलर है वो आपका इम्पैक्टफुल होना चाहिए, अदरवाइज मतलब बाल दिखेंगे ही नहीं। Okay. This is so scary. सो विंडो कैप्चर एंड डिस्प्ले कैप्चर आई हैव टोल्ड यू, और आप इसका अंतर हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। जैसे हम गूगल मीट में करते हैं विंडो के लिए, टैब के लिए, वही चीज़ एंटायर स्क्रीन के लिए, वही चीज़ यहाँ पर है, विंडो कैप्चर या डिस्प्ले कैप्चर। डिस्प्ले कैप्चर में हर एक चीज़, हर एक विंडो जो है डेस्कटॉप की वो कैप्चर होगी, वेयर एज विंडो कैप्चर में केवल पर्टिकुलर विंडो ही कैप्चर होगी। सीन्स, जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट सीन्स अगर आप क्रिएट करते हैं तो जैसे आप जो मूवी तैयार करना चाहते हैं वो मूवी यहाँ पर तैयार हो सकती है डिफरेंट सीन्स क्रिएट करके। सीन 1, सीन 2, सीन 3, चाहे जितने, उसी हिसाब से आपके वीडियो कैप्चर। एक एक सीन में आपको केवल विंडो कैप्चर और ब्राउज़र चाहिए, दूसरे सीन में आपको जो है पीडीएफ को डेमोन्स्ट्रेट करना है, तीसरे सीन में आपको वीडियो दिखाना है। तो ये डिफरेंट सीन्स बना करके हम अपनी पूरी मूवी तैयार कर सकते हैं। सीन्स केवल इसलिए हम यूज़ करते हैं, वैसे एक सीन से भी हमारा काम चल सकता है। ये देखिए, कई सारे सीन्स मैंने क्रिएट करने की कोशिश की और मैंने चला के भी देखा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हॉट कीज़, इस टाइम पर जो हॉट कीज़ हैं वो सीन्स की स्विचिंग के लिए होते हैं। कि सीन 1 पे आप काम कर रहे हैं, सीन 1 पे काम करते करते मुझे सीन 2 पे जाना है, तो वहाँ से अगर हॉट की मेरी वर्क करेगी तो ऑटोमेटिकली जो रिकॉर्डिंग होगी सीन 1 की हो जाएगी। सीन 2 से सीन 1 पे स्विच कर जाऊँगा, और सीन 1 से सीन 2 में लाना है तो हॉट की को मैं दोबारा प्रेस करूँगा तो मैं सीन 2 पे वापस आ जाऊँगा। तो ये हॉट कीज़ का
फंक्शन रहेगा, मैं बताता हूँ हॉट कीज कैसे यूज़ करनी है, कैसे बनानी है। दिस इज़ वेरी यूज़फुल और वेरी गुड। उससे पहले बता देता हूँ कि ट्रांजिशन, सीन्स ट्रांजिशंस, यानी सीन जब एक सीन से दूसरे सीन में आप ट्रांजिट करते हैं, उस टाइम पर आप किस तरीके से ट्रांजिशन बना सकते हैं। तो उसके लिए आप जो चौथी विंडो है पैनल, जो मैंने 3 विंडोज़ पहले बता दी थी, चौथी विंडो ये है, रादर 5वीं विंडो है। थर्ड विंडो इज़ ऑडियो, हाँ 4th विंडो है, सॉरी। तो 4th विंडो में आप सीन्स का ट्रांजिशन कर सकते हैं। सीन्स के ट्रांजिशंस में लाइक स्लाइड्स में हम जो ट्रांजिशन करते हैं, सेम ट्रांजिशन वी कैन अप्लाई हियर, बट यहाँ पर कुछ डिफरेंट ट्रांजिशंस भी हैं, लाइक स्टिंगर है या लीमा वाइप है। ये हम बड़े बहुत अच्छे लगते हैं, तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कि लीमा वाइप के जो और प्रॉपर्टीज़ हैं, तो हम इस सेटिंग में जा कर के उन प्रॉपर्टीज़ को देख सकते हैं, या डिफरेंट स्टाइल्स जो हैं वहाँ पर वो देख सकते हैं, इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं अगर हम इस सेटिंग पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ल्यूमा वाइप मैंने सेलेक्ट कर लिया, और ल्यूमा वाइप में कितने ऑप्शंस हैं मेरे पास, वो सारे के सारी पूरी विंडो आपके सामने आ जाएगी, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड दैट कैन बी अप्लाइड ऑन योर ट्रांजिशन। सो हियर आउटपुट मीन्स, यहाँ जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप कहाँ पर इस वीडियो को सेव कराना चाहते हैं, इसके लिए मैंने बताया है। दूसरा जो बिट रेट है वो कितनी होनी चाहिए, सो दैट उसकी स्मूथ जो वीडियो की स्मूथनेस है वो बनी रहे। एंड ये जो है आपका ये सोर्स पाथ होगा जहाँ पर रिकॉर्डिंग आपकी जाके सेव हो रही है। नेक्स्ट इज स्ट्रीमिंग। स्ट्रीमिंग ऑन यूट्यूब। यूट्यूब पे स्ट्रीमिंग के लिए आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। सेटिंग्स में से पहले आप सेटिंग्स क्लिक करिए, सेटिंग्स में स्ट्रीम पे जाइए, क्लिक करिए, और स्ट्रीम्स में आपको मिलेगा यूट्यूब RTMPS। और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपको फेसबुक पे करना हो, तो यहाँ से ही आप फेसबुक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो यूट्यूब की जो जनरेट होती है, वो की आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके लिए आपको सिलेक्ट करना का यूज़ स्ट्रीम की। तो जैसे ही आप यूट्यूब पर जाएंगे तो आप ये देखेंगे, हो सकता है मैंने यहाँ डाली हुई है, यस दिस इज़ हियर। जब आप वहाँ पर लाइव के लिए जाते हैं, तो लाइव पे, क्योंकि आप OBS के थ्रू लाइव कर रहे हैं, तो OBS पे अगर आपने मीट को लाइव करना है, तो आप ये काम करिएगा कि ये जो की है स्ट्रीम की, इस की को आप कॉपी कराइए, और कॉपी कराने के बाद जो यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है यूज़ स्ट्रीम की, तो जो नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने बताया कि इसको आप कॉपी करा लीजिए। इसको कॉपी कराने के बाद आगे जा कर के जैसे आप ये यूज स्ट्रीम की करेंगे, तो आपके पास एक ऑप्शन और आ जाएगा, की, स्ट्रीम की। तो यू कैन पेस्ट दैट की देयर इन दैट बॉक्स। स्ट्रीम की, जो की आपने यूट्यूब से कॉपी की है, वो की आप यहाँ आकर के स्ट्रीम की में पेस्ट कर देंगे, और उसके बाद यहाँ से आप उसको ओके कर दीजिए। इसका मतलब ये होगा कि आपकी गूगल मीट यूट्यूब पर लाइव हो जाएगी। जैसे ही आप ओके करेंगे, वैसे ही वहाँ लाइव होना शुरू हो जाएगी। केवल डिफरेंस होगा 5 और 6 सेकेंड्स का, और आपका सारा जो डेटा है गूगल मीट का, वो सारा का सारा यूट्यूब पर लाइव हो जाएगा और वहीं स्टोर होता रहेगा। और उसके साथ साथ वो यहाँ पर भी स्टोर होगा आपके OBS में। तो आपके पास 2 कॉपीज़ होंगी। देन जैसे ही आप वहाँ से अप्लाई करके ओके करते हैं, वापस आप यूट्यूब में आइए, और यूट्यूब में जो ये आइकन है, जो बटन है, उस टाइम ब्लैक होगा, और जैसे ही स्ट्रीमिंग शुरू हो जाएगी, वैसे ही ये ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लू में टर्न होते ही जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, वो लाइव, तो आप लाइव हो जाएंगे। एंड दिस इज द वे हाउ यू कैन live your meet on YouTube.
नाउ लास्ट में जो हॉट कीज़ हैं वो मैं और थोड़ा और बता देता हूँ, उसके बाद आप ट्राई करिएगा। ट्राई करने के बाद अगर कोई इशू होता है तो प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं। सो सेटिंग्स पे क्लिक करें। उसके बाद ये जो सेटिंग्स मेन्यू आएगा, सेटिंग्स मेन्यू में आपको लेनी पड़ेंगी हॉट कीज़। एंड हॉट कीज़ पे आप क्या क्या कर सकते हैं वो मैं यहाँ बता देता हूँ। अगर आपको स्ट्रीम स्टार्ट करना है तो वहाँ पर आप स्ट्रीम स्टार्ट करने के लिए कोई हॉट की यहाँ बना सकते हैं। तो जैसे ही आप वो की यहाँ पर जो आपने बनाई है उसको जैसे ही प्रेस करते हैं, स्ट्रीमिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी आपको वापस ओबीएस में नहीं आना पड़ेगा, यानी आपका जो जो प्रेजेंटेशन है वो कंटिन्यूड रहेगा। और बीच में जैसे ही आप, जैसे इस टाइम पर मैंने जब ओबीएस स्टार्ट किया उस टाइम पर जो रिकॉर्डिंग है, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इसकी जो हॉट की है जो मैंने बना रखी थी उस हॉट की को मैंने स्टार्ट कर दिया था। और जैसे ही मैं इसको ख़त्म करूँगा तो दूसरी हॉट की, स्टॉप रिकॉर्डिंग की हॉट की है, वो मैं उसको प्रेस करूँगा और मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। तो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। चलते हैं हॉट कीज़ पर। Sir, these are just like shortcut keys of, यस यस मैम, right? शॉर्टकट। अब इसमें क्या है कि जैसे आप ओबीएस पर आते हैं तो ये स्क्रीन सामने आ गई, तो क्या होगा कि ये भी रिकॉर्ड हो जाएगा। तो आपकी जो प्रेजेंटेशन की स्मूथनेस है वो डिस्टर्ब होगी, यानी ये स्क्रीन तो बेकार आ गई ना यहाँ पर। मैं यहाँ पर आकर के फिर स्टार्ट करूँगा, Right. फिर रिकॉर्ड करूँगा, तो बजाय इसके कि मेरा प्रेजेंटेशन चलता रहेगा और उसी टाइम पर मैं ये कीज़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। सेटिंग्स, हॉट कीज़, और ये है आपकी स्ट्रीम की जो हमने वहाँ से कॉपी किया है यूट्यूब से, वो हम यहाँ पेस्ट कर देंगे इस जगह पर। पेस्ट करने के बाद यहाँ से आप ओके करेंगे, नीचे से अप्लाई करेंगे, वो यूट्यूब पर लाइव होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल हम बात करें हॉट कीज़ की। हॉट कीज़ के बारे में यहाँ पर आइए। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग रिकॉर्डिंग के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट, लेफ्ट स्क्वायर ब्रैकेट, वो मैंने लिया है। और रिकॉर्डिंग ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लिया है। तो जैसे ही मैं इसको क्लोज करूँगा मेरी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। और उसके अलावा बहुत सारे केस हैं, जैसे कि मेरा वीडियो सामने आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो जो है उस टाइम पर म्यूट हो जाए, जो मेरे पीछे जो स्क्रीन है वो स्क्रीन दिखाई दे, इसलिए मैं अपने आप अपना वीडियो म्यूट कर दूंगा। तो मैं उस स्क्रीन के सामने से हट जाऊंगा और फिर वो स्क्रीन आपके सामने आती रहेगी, और दोबारा से मैं उसको अनम्यूट करूंगा तो मैं वापस आ जाऊंगा। तो ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से कर सकते हैं। सीन 1 की सेटिंग सीन 2 चलाने के लिए मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड 2 दिया हुआ है यहाँ पर, एंड सीन 1 चलाने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एंड 1 दिया हुआ है। तो ये सीन 1 एंड सीन 2 का ट्रांजिशन इस तरह से हो सकता है। ऐसे ही ऑडियो म्यूट, अनम्यूट, एंड इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है वो है स्टिंगर, जो है ये जो ट्रांजिशन के लिए यूज़ होता है, इसको हमें अलग से जो है इंस्टॉल करना पड़ता है, उसी हिसाब से कॉन्फ़िगर भी करना पड़ता है। तो स्टिंगर का एक कंप्लीट कंसेप्ट है केवल स्टिंगर ट्रांजिशन का। बाकी तो इजी हैं जो कि हम स्लाइड में करते रहे हैं, लेकिन स्टिंगर इज़ डिफरेंट। एंड दिस इज़ वीडियो कैप्चर। अगर मैं यहाँ पर कोई शॉर्टकट की डाल देता हूँ और इसको मैं उस की को जब ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन क्लिक करता हूँ तो मेरा वीडियो ऑफ हो जाएगा, और जैसे ही दूसरी अनम्यूट की वाला क्लिक करता हूँ तो वो वीडियो वापस आ जाएगा। तो ये इस तरीके से वर्क करती है हमारी कीज़, शॉर्टकट कीज़। सर, इनमें कंट्रोल शिफ्ट होना ही स्टार्ट नहीं नहीं मस्ट नहीं, है? कोई ज़रूरी नहीं है। वो मैंने इसलिए लिए हैं कि कई फंक्शंस में इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, तो इसलिए हमने ले लिया। और अगर ओके, जैसे मैंने पीडीएफ, कोई भी कोड रखना है हाँ हमने अपनी तरफ कोई से। भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब यहाँ पर ये चल रहा, देखिए मैम, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये स्टॉप रिकॉर्डिंग चल रहा है अभी, मतलब रिकॉर्डिंग चल रही है, स्टॉप मुझे करना है। तो स्टॉप रिकॉर्डिंग के लिए जैसे ही मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज क्लिक करूँगा वैसे ही रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। बाकी सब
जब तक मैं नहीं करूंगा तब तक ये चलता रहेगा, या फिर मैं यहाँ से क्लिक करूं। मेरे ख्याल से इस पे हम इतना कर चुके हैं कि हमारा जो रिकॉर्डिंग है, OBS रिकॉर्डिंग है, वो आसानी से हो सकता है। एनी क्रोमा की चल सकती है, हमारा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट चल सकता है, सब कुछ चल सकता है, यानी हमारे वीडियोस बन सकते हैं। सर मल्टीपल स्ट्रीमिंग कैसे पॉसिबल है? आपने कभी ट्राई किया है? मे बी से आई वांट माय मीट टू बी, आई मीन मल्टी स्ट्रीम हो यूट्यूब पे भी और फेसबुक पे भी, एज वी डू इट इन स्ट्रीम यार्ड। मैं सर इस स्ट्रीम यार्ड में तो आपको लेना पड़ता है ना, यहाँ पर भी परचेज प्लान। हाँ परचेज लेना पड़ता। यहाँ पर भी जब आप यूट्यूब पर हैं तो आप फेसबुक पर एक बार में एक ही जगह कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप ये ओके, देखेंगे, मैंने आपको अभी दिखाया था। हाँ, दैट्स व्हाट आई एम वंडरिंग। मुझे था कि शायद हम दो में एक साथ जा सकते हैं, नहीं एक बट था, आई थिंक स्ट्रीम में देयर इज ओनली वन ऑप्शन एट अ टाइम। लेकिन मैं इस बात को श्योर नहीं कर सकता कि एट वन टाइम हम जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे इसको स्ट्रीम नहीं कर सकते हैं, लाइव नहीं कर सकते। इसके लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ, ओके, लेकिन दैट वी नीड टू क्रॉस चेक। हाँ ओके, उसको गॉट मैं चेक करता हूँ, देन आई डेफिनेटली लेट यू नो। एंड इसके साथ मैं इसको एक बार जो है फिर से क्लोज भी करता हूँ, लेकिन अभी फिलहाल क्लोज नहीं कर रहा। अगर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड सर, मैम। या संचिता मैम कह रहे हैं कि आई थिंक वी नीड टू चेक। या एब्सोल्युटली ट्रू। हम्म। हाँ, सो अगर हमारे पास कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो वी आर डॉट ऑन टाइम 7:30। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस प्लीज आस्क, और सर तो हैं ही अवेलेबल हेल्प के लिए। एनी टाइम, एनी टाइम। सर इसमें हम को होस्ट भी नहीं बना सकते ना, जैसे स्ट्रीम यार्ड में कर सकते हैं? स्ट्रीम नहीं मैम, नहीं, अब हम मीट में कर रहे हैं, मीट में कर सकते हैं। ये तो आपके लिए पर्सनल लाइव करने के लिए होगा, हाँ, और आपका one प्रेजेंटेशन person. रिकॉर्ड करने के लिए होगा। तो यहाँ पर Right. जो को होस्ट Thank की you. जरूरत तो पड़ेगी ही नहीं। Sanjita ma'am, you are mentioning Restream.io allows live stream on multiple platform. So is it the free? Yeah, I think Restream.io is also free, I think, because the last time I checked, ये मैंने जब यस मैम, आई हर्ड अबाउट इट। Hangout on Air खत्म हो गया, मैं तो बहुत disappointed हो गई, तो I started researching, तो उस वक्त मुझे StreamYard, Restream.io, OBS, I discovered those at that time. So Restream, I think, allows you to live stream on 5 platforms at any given point of time. So Oh, आप wow, Facebook that's करिए, wonderful. YouTube करिए, Really Periscope wonderful. करिए, Okay. quite a few. Restream.io is also quite powerful, but yeah, OBS is amazing. And मैं वही आज देख रही थी कि जब मैंने पहली बार OBS ट्राई किया था, and now I think many more features have been added.